MBA in Finance, Human Resources Management and Production from SPPU. Being a QAG head, Sir handled several of responsibilities of QMS, that is, Quality Management System, and other activities like competitive exam, holistic development, 5S implementation, faculty development programs, mentorship, employability skill enhancement, elite club, slow learner club, e-bulletin, literary club, etc. He has designed and developed various processes and procedure and policies for quality control and quality assurance. Wow, that is so great, sir. We are so fortunate to have you as our QAG head. Apart from this, he is also working as a college examiner officer and a coordinator for distance MBA and distance MCOM. Sir also served as student development officer, editor for Ashoka Journal, chairman, moderator, paper setter, examiner for Savitribai Phule, Pune University, external senior supervisor and internal senior supervisor, CAP coordinator, etc. Sir provide consultation for PhD research work, data analysis, career counseling, etc. Sir have written more than 5 books on business mathematics and statistics, business analytics, also business analytics and data mining, and many more. Sir has also shared his knowledge and expertise for national level workshop on NetSet and personal financial planning. Sir has published more than research papers in various national and international journals. Apart from this, he has attended more than 33 faculty development programs and short-term training programs to enhance his career. Wow, it is very huge achievement, sir. We are really proud, glad and grateful to have you, a visionary person, Dr. Biradar, sir, as our resource person today. Now I request him to please start the session. Thank you, sir. Yeah, thank you very much. This much was not expected actually. So thanks for giving me the opportunity to speak now. So is my screen visible to you? Yes, now you see. Hello. Yes, yes. Yes, visible, sir. Okay. Yes. Yeah. Let me know if I'm not audible or my screen is not visible to you. So mathematical reasoning for SETNET exams. I hope that everyone here in the class is those aspirants for their SETNET exams. So you might be knowing your general paper 1, in which there is a small portion of mathematical reasoning. Okay, my a question before starting: why reasoning is a part of SETNET or other competitive exams? Almost all the competitive exams, you can see that reasoning is a part of competitive exam syllabus. Why is it so? Yes, anyone? To develop cognitive ability. To develop it is a part of competitive exam. Exam authority wants to check your reasoning. Okay, why they want to check your reasoning? How to Why handle do they any want to situation? test your reasoning ability? Okay, how to handle? Then It is a part of day-to-day life. yes, it is part of day-to-day life, but how? In any profession, the problem solving ability is very important, and reasoning is much related to the problem solving Very ability. good. Yeah, there you are. Everywhere you wherever you go, you will see the problems. Okay.
Now, to understand the problem and to find the solution, you must have a strong reasoning ability. Okay. So, the people who are being selected through competitive exams, they are going to handle key positions. And when they are going to handle key positions, they are going to face many problems. Now, to understand the problem and to find the solution to this problem, a person must have a strong reasoning ability. So that is why whether you appear for MPSC, UPSC, CAT or SETNET, you will find reasoning as a part of any competitive exam. So there are different types of reasoning: logical reasoning and mathematical reasoning. Mathematical reasoning, or sometimes we call it as numerical ability. Okay. So we are Homo sapiens sapiens. Okay, somebody from biology background may be here in the class. So humans are known as Homo sapiens sapiens. What separates humans from the other animals is what is the difference Ability to between think. Human have yes, ability to think. Ability to think and rethink. Intelligent. ab- And yes, they are having ability power of to think, introspection. introspection, logic, a strong logic, and in other terms, we have a strong reasoning ability to find the reason why it happens, how it happens, how I can do this, what is this. Okay, so many question comes to our mind, and our mind has that ability to analyze these questions and get the appropriate answer. So reasoning is inbuilt in us. If we are human, if we are human beings, we are having a strong logic. It's inbuilt. There is no need to learn it from somewhere else. Okay, so it is inbuilt in us. Now only the question is whether we are using it or not. Whether we are applying our reasoning skills or not. So if you see this diagram, what do you understand by this diagram? Yes, anyone? So it is basically based on the means how other animals are different from us. Some of our we are having authority No. of It decision is making. related to human beings only. It is related to human beings only. If you see these Okay, the circles, category of human beings of partial decision category making of and human beings. How you capable of Okay. decision making? So if you go to any organization, any company, any country, any school, any society, you will find that only few people, and the research is done and it is find that only 5% of people are really decision making authority at any given place. Okay. So if you go to any school and if 100 people are working there, only 5% people are taking the real decisions. They are called as decision making authority. And 25% of the people, if you see the outer circle, they are not involved in any decision making process. Then few people, they are just informed about the decision. Okay, let us take example of this workshop. Now,
when we are taking the decision about this workshop, there are only few people who are really decision making authority, and there are many people who are not involved in the process. Few people are just informed that we are going to conduct this workshop. Consultation is done with few percent of the people. Few are included in the decision making process, and with few people decision making is shared, and some are partial decision making authority. And only if you see the red circle, area of red circle is much low than other circles. These are the actual decision making authorities, and research says that these are only 5% people. And who are those 5% people? Those are the people whose reasoning ability is much more better than the other people. Okay, so if you want to progress in the life, if you want to go to the decision making authority positions, then you must have a strong reasoning ability. Okay, it is there in you, but as Swami Vivekananda said that education is manifestation of the perfection which is already there in the human being. So it is there in us, but we will have to polish it. Okay, so that is why reasoning is very important aspect. Clear? Let us move to the SETNET. Then if you see the syllabus, there is one general paper in which you will have mathematical ability or numerical ability or mathematical reasoning, in which if I see the NET syllabus, you will see two parts. First is related to series, number series, letter series, code and relationship. And second part is mathematical aptitude. And what is there in work and time, fraction, time and distance, ratio, proportion and percentage, profit and loss, interest and discounting, average. Okay, this is the syllabus of SETNET for mathematical reasoning part. I don't think anyone is there in this class who don't know all these things. We have studied everything in the school. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. We know fraction, we know ratio, we know proportion and percentage, we know profit and loss, we know interest, we know averages, how to find the average, how to find the discounting, how to find the time required for doing the work. Everything we know. Then what is the difficulty? Okay. Now, what is the problem is time is one of the problem. So probably if you are getting more time to solve these questions, you all will solve that. But we have limited time assigned for the exam, and in that limited time, we have to do the right calculations. Now the second thing is many people are there who have lot of phobia related to numbers or mathematics. I don't know why. Okay, so mathematics is nothing but just a logic. And being a human being, we are logical animal. So we are inbuilt mathematicians. Okay, we have that brain which do all the calculations. So there is nothing to fear about the mathematics. Why we fear? Because we are not clear about how to use the formula, where to use the formula. There are so many formulas, how to remember the things, how to do calculations very quickly. So the speed is important aspect here in any competitive exam. अगर आपको 1 घंटे की जगह पे 2 घंटे का टाइम मिलेगा तो सारे लोग सारे क्वेश्चन का आंसर बराबर ढूंढ पाएंगे. बट जब आपको 1 घंटे में या आधा आधा घंटे में या 15 मिनट में सॉल्व करना है, तो दैट इज द इशू. एंड हाउ वी कैन ओवरकम दैट इशू? वी विल हैव टू यूज डिफरेंट ट्रिक्स. नाउ ट्रिक्स आर नॉट द शॉर्टकट्स. ओके, ट्रिक्स इज नथिंग बट जैसे हमें सब कुछ याद हो गया तो हम समरी लिखते हैं, है ना? दैट इज हाउ द ट्रिक्स वर्क्स.
So you can use the different tricks for different types of problems. For that, you will have to go through the uh, different formulas. Either you develop your own, or there are different books in the market which provides you the different tricks for the different topics. One of the book is Quicker Maths by Tyra. If you search on the Amazon, you may get that book, Quicker Maths, and so many tricks are given to solve all these problems very quickly. Okay, so what is important is speed first. Second is correct way of thinking. So you must know what type of the problem is. For example, हम work में जाएंगे या परसेंट में जाएंगे तो there are different types of problems. परसेंट में क्या आ सकता है? इनिशियल प्राइस दी है, बड़ी हुई प्राइस दी है, तो व्हाट इज द इंक्रीज परसेंटेज, एक टाइप की प्रॉब्लम हो गई. या आपको इनिशियल प्राइस दी है, उसके ऊपर बोला है कि 20% डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो ये दूसरे टाइप का प्रॉब्लम है. आपको सेलिंग प्राइस दी है, डिस्काउंट दिया है, और पूछा जाता है कि इनिशियल प्राइस क्या है, तो ये तीसरे टाइप का प्रॉब्लम हो गया. तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है. दैट इज वेरी इजी. ओके, सो correct way of thinking is very important. Many times accuracy is not at all expected. Many times, for example, आपको ये दिया गया है कि एक प्रोडक्ट है जिसकी एमआरपी 117 रुपए है, उसके ऊपर 49% डिस्काउंट है. 117 रुपए की एमआरपी है, 49% डिस्काउंट है. व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन ऐसे है जिसकी प्राइस इज मोर देन कितना बोला था मैंने, 117 वॉट एवर. अगर डिस्काउंट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस कम होनी चाहिए. तो देर इज नथिंग टू कैलकुलेट, ओनली दैट लॉजिक कि आप उतने प्रेशर में वो लॉजिक लगा सकते हैं नहीं लगा सकते. सिंपल लॉजिक था. डिस्काउंट दे रहे तो प्राइस कम आनी चाहिए. तो अगर ओरिजिनल प्राइस से कम वाला एक ही ऑप्शन है तो आपको कुछ देखना ही नहीं है. नो कैलकुलेशन, नो फॉर्मूला, नथिंग नथिंग नथिंग. गॉट इट? और ऐसे होता है, बहुत बार होता है, टू टेस्ट वेदर योर ब्रेन इज वर्किंग स्मूथली अंडर प्रेशर और नॉट. बहुत सिंपल सॉल्यूशन होते, बट अंडर प्रेशर हम गलती करते हैं. गॉट इट? सो मेनी टाइम्स एक्यूरेसी इज नॉट एक्सपेक्टेड. या फिर 49% डिस्काउंट दिया है मतलब हाफ हो जाएगा, तो देयर आल्सो यू डोंट नीड टू डू द कैलकुलेशंस. 120 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, 49% डिस्काउंट है, मतलब हाफ प्राइस पे आना है, ऑलमोस्ट 50 के आसपास. तो 60 के आसपास जो आंसर होगा दैट इज योर आंसर. बाकी आंसर बहुत दूर है 60 से, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है. गॉट इट? सो ऑप्शंस देखो आप, और बहुत सारे ऑप्शंस को आप इमीडिएटली इग्नोर कर सकते हैं. फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है. सारे प्रॉब्लम ऐसे नहीं आएंगे कि जिसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना है. तो इफ यू नो द फार्मूला, यू कैन डू द कैलकुलेशन एंड देन फाइंड द करेक्ट आंसर. मेनी टाइम्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के भी बहुत ज्यादा सम होते हैं. डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब 10 मोबाइल की प्राइस अगर 4 लाख है, तो 20 मोबाइल की प्राइस कितनी होगी? गॉट इट? तो 10 के डबल करना है. 10 की 4 लाख है तो 15 की कितनी होगी, उसमें हाफ करके ऐड करो, है ना. या 10 मोबाइल की प्राइस इतनी है तो 5 की कितनी होगी. तो यू कैन यूज द जनरल लॉजिक फॉर फाइंडिंग द आंसर्स. फार्मूला पता होना चाहिए. ऑप्शंस को देखो, मेनी टाइम्स यू कैन इग्नोर द ऑप्शंस एंड डायरेक्टली अगर इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, ये भी अगर आपको पता चला आंसर, तो आप फाइंड कर सकते हैं. प्रैक्टिस इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे
तो फिर वो स्पीड नहीं आएगा. सो स्पीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? Yes, sir. Okay, so this is the syllabus. Now number series is the first part. So series आपने पढ़ा होगा. I have only 1 hour, so I will be taking very fast and very few things because this is not the syllabus entirely. We can discuss in 1 hour. So series में अगर आप जाएंगे तो there are different types of series, है ना? So you must know what is odd number, even number, prime number, square, cube. मल्टीप्लीकेशन के कुछ सीरीज होंगे, डिविजिबिलिटी के होंगे, सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन के भी सीरीज होते हैं. तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो आएगा कि सीरीज को कैसे सॉल्व करना है. वेरी सिंपल. फर्स्ट में सीरीज में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज. ओके, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स. So this is the syllabus for series. Number series wherein numbers are given in the series and you will be asked to find the missing numbers. Okay, let us take this example. Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So the first question is, a series is given to you 36, 34, 30, 28, 24. So what will be the next number? Simple logic. See the numbers. Once you see the numbers, see whether there is a constant difference. 22 will be the Okay. answer. Yeah. So जब भी number series आएगी तो first you give thought on addition and subtraction, है ना? Is there a constant addition, constant subtraction? तो 36, 34 डिफरेंस कितना है? 2 का है. फिर 34, 30 डिफरेंस कितना आया? 4 का. 34, 30, 32 डिफरेंस कितना आया? 2 का. There is no constant difference, but there is pattern of pattern in the difference. And what is that pattern? There is a The 2 minus 2, 4, 4, then minus 4 minus 2, हाँ, है ना? Difference of 2, then difference of 4, then difference of 2, then difference of 4, then there will be difference of 2. So 2 series are involved alternatively, or there is an alternate difference. Okay, so this is how you can have the logic, है ना? पहले 4 का डिफरेंस है, फिर 2 का है, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का. ऐसे एडिशन भी हो सकता है, ऐसे +2 +4 +2 +4 या जो भी है. Got it? Then if you see the second 7, 10, 8, 11, 9, 12, इसमें क्या है? 10 answer. C. 10 answer. Okay, so there are alternate series. What are those alternate series? 7, then 1 gap 8, 1 gap 9, 1 gap 10. Yeah, 7 + 3, 10 - 2, +3 - 2, +3 - 2. Likewise, yeah, alternate series भी आप देख सकते हैं. थर्ड में 5, 4, 4, 5, 0, 9, 4, 7, 4, 4, 3, 9. अब ये नंबर देखेंगे आप तो समझ में नहीं आता है. अभी 7, 8 का तो इजीली समझता है क्योंकि हमने उसके ऊपर बहुत काम किया है स्कूल में. 7, 8, 9, 10. So our brain have a practice to identify that pattern easily. अब ये नहीं होता है, तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एक तो कांस्टेंट एडिशन, कांस्टेंट सब्सट्रैक्शन, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या कांस्टेंट डिवीजन होता है. ओके, इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो देखो इंक्रीजिंग सीरीज है या डिक्रीजिंग है. 5, 4, 4, 5, 0, 9 डिक्रीजिंग है. ओके, तो डिक्रीजिंग है तो डिफरेंस देखने का पहले कितना डिफरेंस है 35. सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, है ना? 35. तो वो पैटर्न एप्लीकेबल है क्या? देखो डिफरेंस का. गॉट इट? तो अगर कांस्टेंट डिफरेंस है तो नेक्स्ट नंबर आएगा, वो ऑप्शन में है या नहीं देखो. 404. गॉट इट?
हाँ, इसमें देखो बहुत बार क्या होता है, अभी ये ऑप्शन तो मैंने दिए है, कभी कभी तो पहले आपको ये देखना है कि सीरीज अगर डिक्रीजिंग है, सीरीज डिक्रीजिंग है मतलब जो भी आंसर आएगा वो 439 से नीचे आएगा, बराबर है। तो एग्जाम में ऐसे भी हो सकता है कि 439 से कम वाला एक ही ऑप्शन हो, तो देर इज नो नीड टू डू एनी एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो पहले वो ऑप्शन को भी देखो आप, क्लियर। अगर हाँ यहाँ पे दो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं जो 439 से कम है तो इट्स ओके, देन वी विल हैव टू सी द डिफरेंस और एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी है। सो एक कांस्टेंट डिफरेंस की सीरीज है, डिफरेंस ऑफ 35, 439 में से 35 माइनस करो, यू विल गेट द आंसर 2 6 18 54। 162. 162 multiple ओके, by into 3. सिंपल, हाँ सिंपल मल्टीप्लीकेशन की सीरीज है। जो भी नंबर है पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट नंबर आएगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54, 54 इंटू 3 ऐसे। देन नेक्स्ट है 16 25 36 49, तो 64 ये आंसर है. 64 आंसर है क्योंकि ये स्क्वायर है ना। तो हमें पता ही ये सब हुआ है स्कूल में, तो जैसे हम देखेंगे तो वो लॉजिक ये प्रैक्टिस से बहुत आता है। ओके, तो ये कुछ न्यूमरिक सीरीज के क्वेश्चन थे। अब अल्फा न्यूमरिक है लास्ट वाला, अल्फाबेट भी है नंबर भी है, क्या आएगा? F2 डैश D8 C16 B32। अब इसमें देखो F2D अल्फा न्यूमरिक सीरीज अगर है तो पहले तो सीरीज अगर आपको सिलेबस में है तो यू मस्ट नो द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स। ओके, अल्फाबेट के पोजीशन को पॉसिबली याद ही कर लो। याद कर लो का मतलब क्या है, ए का नंबर 1 है, B2 है, C3 है, D4 है, E5 है, या 5 5 के गैप में कर सकते हो। हाँ सर, E5 है, सीरीज देन आगे 10 जा रहे नंबर पे हैं. जो आएगा J। हाँ, तो ऐसे भी आता है बहुत बार, A1 या M13। तो A1 M13 क्या है, ये पोजीशन है उनका ABCD में। ए का पोजीशन 1, एम का पोजीशन 13, इसमें मैथ्स का कोई रिलेशन नहीं है। बट इसमें अगर देखोगे डी का पोजीशन 8 नहीं है ना। ऐसे भी हो सकता है कि जो पोजीशन है उसका डबल करे, तो इसलिए एबीसीडी का पोजीशन पता होना चाहिए। या बेटर वे, जब आप एग्जाम रूम में जाते हो तो एग्जाम रूम में सर, जब भी आप जाते हो तो आपको पहले कुछ टाइम मिलता है वो। हेलो, अल्फाबेट्स आई एम ऑडिबल? रिवर्स जा रहे हैं सर, अल्फाबेट्स रिवर्स जा रहे हैं, और न्यूमरिक जो है नंबर्स वो हाँ हाँ, डबल हो रहे हैं. बराबर है, वेरी गुड। तो अल्फाबेट्स, अल्फा न्यूमरिक सीरीज ही यही है, अल्फाबेट्स एक एक से कम हो रहा है और नंबर डबल हो रहे हैं। 2 का इधर 4 आएगा, 4 का 8, 8 का 16, 16 32। तो E4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, बट आई वाज टेलिंग यू अबाउट द अल्फाबेट्स। तो जैसे आप एग्जाम रूम में जाओगे यू मे गेट सम टाइम, वो क्वेश्चन पेपर भी देते हैं और आपको बोला जाता है कि उसका सील मत निकालो। तो ऑनलाइन एग्जाम है क्या अभी? Yes, sir. यस ऑफलाईन सर. ऑफलाईन No, असेल. sir. No, sir. नहीं It's नहीं, on. क्वेश्चन पेपर For प्रिंटेड net आएगा on या? for net online and for set offline now. हाँ यस सर. या तो आप उधर जैसे जाओगे ना, वो एबीसीडी आपको लिखना है। ये देखो, ये तो लिख के ही रखो आप, लेटर सीरीज आगे आने वाला है। A to Z पूरा लिखने का, एक लाइन में आना चाहिए। उसको आप 1 to 26 भी लिख सकते हो। A to Z बैक भी लिखो, मतलब जेड से स्टार्ट करो, ए तक जाओ। और एक सीरीज ऐसे ही लिख के रखने की, हाफ सीरीज। हाफ मतलब क्या है, A to M, फिर नीचे आओ एन पे और उल्टा लिखो। ऐसे बहुत बार पूछा जाता है, जैसे CX और DW MN, आगे क्या आएगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद आते हैं। तो ये आप लिख के रखो। 10 तक के स्क्वायर याद करो, स्क्वायर अप टू 10, क्यूब अप टू 10, ये याद होनी चाहिए। या 2 and
3 के पावर्स, 2 एंड 3 के पावर्स कौन से? 2 का पावर 1 मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आता है, 2 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 मतलब 2 का 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन। ऐसे भी सीरीज आती है 2 4 8 16, आगे पूछा जाएगा उसका आंसर 32 आता है। कैसे? डबल हो रहा है, ये 2 टू पावर है। सेम 3 का पावर भी आ सकता है, 3 टू द पावर 1, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 टू द पावर 4, और आगे या बीच में भी कुछ तो। ओके, तो ऐसे सीरीज आ सकते हैं। अब सिंबल कोडिंग एंड थोड़ा सा न्यूमरिक लेते हैं। कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes. Yes, sir. हाँ, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दिस इज रोमन। ये भी आपको पता होना चाहिए, हमें सबको पता है, स्कूल में हुआ है। 5 8 11 14, नेक्स्ट क्या आएगा फिर? Option D. 70 20. है ना? 5 8 डिफरेंस ऑफ 3 बट रोमन में दिया है ना? 5 8 11 14 17 एंड 20, बट इट डी आया। अब ये अल्फाबेटिकल सीरीज है, AZGTMNYB, देखो कैसे आता है, कैसे करेंगे? सर बी ऑप्शन है, 3 का डिफरेंस है ना? हेलो, सर बी ऑप्शन है। हाँ तो कैसे? व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? 3 का डिफरेंस है ना, 5 Sir. के बाद 8 उसके बाद 11 3 का डिफरेंस है सबके अंदर। हाँ, फर्स्ट वाला हो गया रोमन, ठीक है, उसका डी आंसर है, बराबर है 17 वाला। नेक्स्ट AZGTMN के बाद क्या आएगा? आंसर इज गिवन देयर, आई जस्ट वांट द लॉजिक बिहाइंड द आंसर। तर एन पर्यंत लिहायचं, एम पर्यंत एन पासून उलट लिहायचं. यस, बरोबर आहे। एम आणि तर तुम्हाला एका खाली एक सापडतील, फक्त तो डिफरन्स कितीचा आहे बघा, ए नंतर जी मध्ये कितीचा गॅप आहे? Sir, सर 5. 5 to 13, 13 to 26 असं आहे काय? 5 चा गॅप, हो बरोबर आहे ना? हा 1 to 13 आणि मग 13 to 26 रिव्हर्स, यस यस बरोबर यस. आहे। त्याच्या आणि खालचा ए भाग नंतर फक्त जी, ए नंतर जी आलेला आहे, तर तो वायचं बी बरोबर आहे 5चा सर. डिफरन्स आहे। जी नंतर एम मध्ये परत 5चा डिफरन्स आहे, येस सर. एम नंतर 5चा डिफरन्स द्या, यू विल गेट एस, आणि एस च्या खाली काय ते बघा, एच आहे, बरोबर। तर अशा सिरीज येतील, सिंपल असता, फक्त ते लॉजिक लावता आलं पाहिजे। ओके, the next part is mathematical aptitude. In that you have work and time, fraction, time and distance, ratio, proportion, percentage, profit and loss, interest and discounting, and averages. Questions are asked on these topics. So ऐसे simple questions होंगे, you can do a piece of work in, for example, we are taking work and time, one of the sample here, how to study, and you can replicate it for other topics. Okay, so as long as the time permits, we can take it. जब हम ऐसे देखेंगे तो थोड़ा सा हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, कैसे क्या ये कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, हाउ मेनी डेज ही विल टेक टू कंप्लीट 3 वर्क्स, ये सिंपल प्रोपोर्शन है। ओके, दूसरा अगर देखेंगे, एक काम 5 दिन में कर रहा है, 3 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे? दूसरा टाइप का है कुछ तो, 16 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, हाउ मेनी men आर नीडेड टू कंप्लीट इन 14 days। अभी मेन बढ़ गए हैं, डेज का भी कंसेप्ट आया उसमें। 40 men can cut 60 trees in 8 hours if 8 men leave the job, how many? ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिलेटेड टू वर्क एंड टाइम। अब हमें करना क्या है, जब हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो कितने टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये जो मैंने आइडेंटिफाई किया है कि टाइम एंड वर्क पे कितने टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो
there are four types of problems on time and work. पहले कौन से? लीनियर रिलेशन मतलब क्या है? एक आदमी को एक काम करने के लिए 3 घंटे लगते हैं, तो 2 काम करने के लिए कितने लगेंगे? 6। बरोबर है ना? एक सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए 3 घंटे लगते हैं, तो 6 सब्जेक्ट के लिए कितने लगेंगे? 18। Got it? So this is just a relationship, linear relationship, increasing or decreasing. Many time it is increasing only. उसमें कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट हम सिंपली एक को इतना तो 10 को कितना, है ना? एक बुक की प्राइस 10 रुपीज है, तो 4 बुक की प्राइस कितनी होगी? 40 रुपीज। या 4 बुक की प्राइस 40 रुपीज है, तो 2 बुक की प्राइस कितनी होगी? ऐसे जो आते हैं उसको बोलते हैं हम लीनियर रिलेशनशिप। क्लियर? दे आर वेरी सिंपल। दूसरे टाइप के जो प्रॉब्लम है उसमें आपको 2 सेट दिए जाएंगे। 4 लोग इतना काम इतने दिन में कर रहे, तो 6 लोगों को इतने टाइम में कितना दिन लगेगा या कितना काम होगा, ऐसे 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 ऐसे। सो देर इज क्लियर 2 डिफरेंट सेट्स। गॉट इट? तो उसके लिए क्या करना है? हमें ये फार्मूला यूज करना है। राइट डाउन दिस फार्मूला, M1 D1 T1 W2 is equal to M2 D2 T2 W1 W2 W1 उल्टा है। ओके, M1 D1 T1 is equal to M2 D2 T2 W1। पहली जो सिचुएशन थी उसमें कितने मैन थे, कितने दिन लग रहे थे, कितना टाइम काम कर रहे थे और कितना काम कर रहे थे, वर्क दूसरा W2 आता है। Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. हेलो? Yes, sir. और दूसरा फार्मूला है M2 D2 T2, और पहले में कितना काम हो रहा था, W1। ओके, ये दूसरे टाइप के प्रॉब्लम्स है। और फिर आते हैं कि कंबाइन दोनों एक साथ करेंगे तो, या फिर दोनों ने एक साथ किया तो इतना टाइम लगता है, अलग अलग करेंगे तो कितना लगेगा? काम वही है ना? तो ये एक काम X डे में करता है, B एक काम Y डे में करता है, तो दोनों एक साथ करेंगे तो कितना दिन लगेगा? उसका फार्मूला है XY डिवाइडेड बाय X प्लस Y। गॉट इट? और फोर्थ टाइप का है A एंड B दोनों मिलके एक काम इतने दिन में करते हैं, उसमें से एक को इतना टाइम लगता है तो दूसरे को कितना लगेगा, ऐसा सेपरेट। तो उसका तीसरा फार्मूला है XY डिवाइडेड बाय X माइनस Y। सिंपल। तो पहले तो टॉपिक आइडेंटिफाई करो आप, टॉपिक में देखो कि कितने टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। अब ये कहाँ से मिलेगा आपको? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। और फिर अभी मुझे पता है कि वर्क में ये 4 टाइप के ही प्रॉब्लम्स है, तो मुझे कुछ भी सम पूछो आप, डायरेक्टली आई कैन फाइंड द आंसर वेरी इजीली। ओके, शैल आई गो? अब देखो फर्स्ट वाला, इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू? Yes, sir. हाँ, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 5 days। ए को एक काम करने में 5 दिन लगते हैं। अब बंदा वही है, उसको 3 काम कंप्लीट करने हैं, कितने दिन लगेंगे? 15. हेलो, योर नॉइस इज नॉट ऑडिबल टू मी। 15 days, sir. 15 days। ओके, सिंपल है, लिनियर रिलेशन में आएगा ये फर्स्ट टाइप जो हमने बोला था, है ना? काम कुछ भी हो सकता है, वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द वर्क। कोई भी काम है, एक काम करने के लिए 5 दिन लगते, तो 3 काम करने के लिए 15 दिन लगेंगे। उसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं। क्लियर? अब देखो, अब ये सम 16 men can do a piece of work in 10 days,
हाउ मेनी मेन आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 14 days. अब दो सेट है, पहले मेन कितना बोला है उन्होंने 16, तो आपका M1 कितना होगा? हेलो, हाँ इसमें M1 कितना है आपका 16. ओके, M1 हो गया, और क्या दिया है D1. D1 दिया है, D1 कितना है 10. टाइम नहीं दिया है कितने घंटे काम कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं, उसको स्किप करो, जो नहीं दिया है डजंट मैटर. देन M2 is given to you. No, M2 is not given. How many men? तो ये M2 आपको निकालना है. ओके, क्वेश्चन मार्क. एंड D2 is given to you. D2 is 40. तो हमारा फार्मूला क्या है अब इसमें? P एंड W है नहीं तो उसको स्किप करो, तो आएगा आपका M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2. अब मुझे फाइंड करना है D2, तो ये M2 फाइंड करना है, तो ये D2 तो इधर लेके जाओ तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो होगा कितना 16 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 14, बराबर है. आ रहा है क्या? ये 16 इंटू 10. हाँ सर, हाँ सर, 160 डिवाइडेड बाय 40. 16 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 40 आएगा. अब 10 एंड 40 ऐसे नंबर दिए जाते हैं जो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं. 10 वन 10, 10 फोर 40, तो आएगा ये 16 डिवाइडेड बाय 4. तो 16 डिवाइडेड बाय 4 करो तो कितना आंसर आएगा 4. देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम डोंट वांट दोज पीपल हु आर वेरी मच स्ट्रांग इन कैलकुलेशंस, है ना. आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है. कैलकुलेटर इज देयर टू डू द कैलकुलेशन. उनको ऐसे लोगों की जरूरत है जो लॉजिक लगा सकते हैं, रीजनिंग. तो क्वेश्चन जब पूछते हैं तो उसमें सिंपल कैलकुलेशन वाले ही पूछते हैं. दे डोंट वांट कि ऐसे लोग जो है जो 217 डिवाइडेड बाय 63 बहुत इजीली फाइंड करते. नो. हाँ, बट इतना काम है, इतने लोग हैं, तो इसमें भी देखो अभी ऑप्शन जब आएगा तो ऑप्शन में भी आप पहले एक बार देखो. 16 लोग अगर 10 दिन लग रहे तो 40 दिन में कंप्लीट करना है, तो 16 से ज्यादा लोग लगेंगे या कम लगेंगे? कम ही लगेंगे, है ना. तो सिंपल लॉजिक ऐसे भी लगा सकते हो, ये अगर 4 टाइम्स बढ़ा है तो ये 4 टाइम्स कम होगा. 10 डेज का 40 डेज हुआ है तो 16 में भी 4 टाइम होगा, 1/4 होगा. 1/4 16 के 1/4 4. ऐसा भी लॉजिक लगा सकते हो. क्लियर? अब ये देखो, कैन यू सी माय नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर. हाँ, M1 D1 T1 W दिया है क्या? कितने ट्रीज? यस, ट्रीज दिया है. W2 इज इक्वल टू M2 D2 T2 W1, ये फार्मूला है. अब M1 कितना दिया है 40 इंटू डेज दिया है क्या? नहीं, डेज को छोड़ दो. आवर्स दिए 8 आवर्स. T W2 मतलब सेकंड के इसमें ट्रीज. If 8 men leave the job, how many trees can be cut? पता नहीं है W2. We don't know W2. How many trees? How many trees is W2? वर्क है वो, ये फाइंड करना है. इज इक्वल टू सेकंड में M2, अभी 8 मेन नहीं है, 8 मेन लीव दी जॉब है, तो इनिशियली 40 थे, तो सेकंड कंडीशन में कितने मेन बचे अपने पास? 32. अभी आवर्स कितने हो गए आपने? 12. और W1 मतलब फर्स्ट सेट में कितने ट्रीज कट हो रहे थे? 60. इजीली वो 40 एंड 8 को उधर लेके जाओ.
है ना, तो यू विल गेट W2. W2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 32 इंटू 12 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 8. अब ये 48, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 इजीली कट हो जाएगा ऐसे कैलकुलेशन से, बराबर है. 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 होगा, तो 0 0 कट होगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 होगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 6 72 आंसर आएगा. 72. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऐसे ही होगा. तो इसीलिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि अब इसमें देखो मेन भी दिया है 10 टॉयज, मतलब ये वर्क हो गया. 6 डेज भी दिया है, 6 आवर्स भी दिया है. ये एक फार्मूला आपको पता है तो इस टाइप के सब आएंगे. So what you need to do is identify the types of problems, कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं और यही मेजर है, और उसका ऐसा एक टेबल बना दो. इस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे, 2 डिफरेंट सेट है तो उसको ऐसे सॉल्व करना. ओके, क्लियर? टुगेदर भी सर आ ये सकता है. अभी पीडीएफ मिल टुगेदर का एक सकती है लेते क्या हैं, हमको? XY डिवाइडेड बाय X प्लस Y. सर ये पीडीएफ मिल हाँ हाँ सकती मिलेगी मिलेगी. है? ठीक है, या आई विल सेंड इट टू सर. ओके, सर विल सेंड इट टू यू. क्लियर? यू कैन गेट इट, नो इशू. यस सर. Yes, sir. हाँ, अब जो देखो सेपरेट नोन है, टुगेदर फाइंड करना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है? XY डिवाइडेड बाय X प्लस Y. सेपरेट X Y. ये देखो ऐसे क्वेश्चन होंगे. इफ A कैन डू a piece of work in X days, B can do it in Y days. A B together निकालना है तो XY डिवाइडेड बाय X प्लस Y करो, है ना. सिंपल. अभी इसमें मैं आपको बोल देता हूँ, है ना. इफ A कैन डू a work in 10 days and B can do it in 20 days, तो A and B टुगेदर कितने में करेंगे? B can do it in 30 days करते हैं. ओके चलो. हम्म, एक काम करने के लिए एक को 10 दिन लगते हैं, बी को 30 दिन लगते हैं, तो दोनों मिलके कितने दिन में होगा? 7.5 days. यस, तो सिंपल एक्स वाई करो. एक्स वाई मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया? 300 डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन कितना हो गया? 40. 300 डिवाइडेड बाय 40 करो. अब ये मैंने डायरेक्टली लिया था, फ्रैक्शन में आता है तो आपको शायद फ्रैक्शन भी नहीं आएगा, ऐसे नंबर्स दिए होंगे. ओके, क्लियर? Yes, sir. है ना. ये अगर एक काम 10 दिन में करता है, बी 5 दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में होंगे? तो 10 इंटू 5 करो, कितना होता है? 50 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 करो, 15. 3 समथिंग आएगा. 3 समथिंग जो ऑप्शन में होगा वही आपका ऑप्शन है. 3 पॉइंट समथिंग, 3 और 4 दिन के बीच में. क्लियर? तो ऐसे भी सम आते, या ऐसे सम पूछे जाएंगे दोनों मिलके एक्स डे में करते और अकेला कोई वाई में करता है, तो दूसरा कितने दिन में करेगा, है ना. फॉर एग्जाम्पल इफ ए एंड बी टुगेदर डू इन 8 days, ये खुद उसको 12 दिन में करता है,
तो बी कितने दिन में करेगा? तो डिवाइडेड बाय 4 करो इसको, कितना आता है? 8 4 जा 12 8 96 भागिले 4 किती होता? किंवा 4 त्रिकोण 12 24 24 days. गॉट इट? x माइनस वाई करना है, ऐसे सम आएंगे। तो ये आपको जब ये पता है, ये टेबल अगर आपके पास है ना, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो इसके अलावा वर्क एंड टाइम में कुछ आता ही नहीं। तो यू नो, ऐसे आया तो ऐसे करना है, ऐसे आया तो ऐसे करना है, ऐसे आया तो ऐसे करना है, रिलेशन में डायरेक्ट एक ही नंबर दिया होता है, उसको मल्टीप्लाई करना। क्लियर? विल टेक अनदर एग्जांपल, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेन वाले आते हैं, है ना। एक ट्रेन इतने स्पीड से जा रही है तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? एक आदमी कार में इतने स्पीड से जा रहा है ना, तो उसको 200 डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? या एक आदमी इतने स्पीड से जा रहा है तो 150 किलोमीटर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो उसका ये फार्मूला हमें पता है, बचपन से स्कूल में पढ़ा है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसी पे होता है। बट आपको ये ध्यान रखना है, जो स्पीड है, स्पीड, आई एम ऑडियो इज अनस्टेबल। हेलो? Yes, sir. Audible. Yes. ऑडिबल है ना? या Audible. Yes. sir. तो इसका भी ऐसे, पहले तो टेबल बनाओ, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू? Yes, sir. Yes, sir. टाइप्स, तो पहला टाइप है डायरेक्ट फार्मूला पे आते हैं। डायरेक्ट फार्मूला मतलब 3 क्वांटिटीज है, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। यू विल बी गिवन एनी टू एंड यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड थर्ड। तो डिस्टेंस स्पीड दिया है, टाइम फाइंड करो, टाइम स्पीड दिया है, डिस्टेंस फाइंड करो, डिस्टेंस टाइम दिया है, स्पीड फाइंड करो। सो यूज सिंपल फार्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, सेम डिस्टेंस है, ओके। नासिक से पुणे जाना है, एक बंदा x स्पीड से जाता है, दूसरा बंदा y स्पीड से जाता है, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड कैसे होगा? वो 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। 2xy मतलब दोनों ने डिस्टेंस कवर किया ना, तो ये फार्मूला। थर्ड टाइप आता है डिस्टेंस सेम बट स्पीड एंड टाइम इज डिफरेंट। नासिक से पुणे जा रहे, एक बंदा इतने स्पीड से जाएगा तो इतना टाइम लगता है, दूसरा बंदा इतने स्पीड से जा रहा है तो इतना टाइम लगता है। या फिर 100 किलोमीटर उसने इतने स्पीड से इतने टाइम में कवर किया, आगे का 100 किलोमीटर उसने इतने स्पीड से इतने टाइम में कवर किया, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड या एवरेज टाइम? कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, ओके। तो जैसे देखो, एक क्वेश्चन है, अ मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस बाय कार अराइविंग एट 70 किलोमीटर पर आवर एंड he returns back to the starting point riding on a scooter at 55 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। अब कौन से टाइप का प्रॉब्लम है ये? 1 2 3 4 में से? सर थर्ड फॉर्म्युला मध्ये सेकंड नंबर वन आहे की काय आहे ते मला कळत नाही. Sir, question is repeat. थर्ड फॉर्म्युला मध्ये xy डिवाइडेड बाय x मायनस वाय, T1 T2 आहे, वेगवेगळे टाइम आहेत ना ते,
एकाला 3 तास लागतात, दुसऱ्याला 4 तास लागतात. असे T1 T2 है ना. माय क्वेश्चन इज, ये जो क्वेश्चन है नाउ, कैन यू सी माय क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now read the question and tell me which type of question is this in the first table. 1 2 3 4 जो मैंने दिए टाइप, उसमें से कौन से टाइप का है? Sir, it is 2. Second type. है ना, सेकंड टाइप. सेम डिफरेंट स्पीड है और स्पीड पूछा है ना. तो कैसे आएगा? 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y. फार्मूला 2xy. तो क्या आएगा इसमें? 2xy. तो इसका आंसर है 2xy. 2 into x is 70, y is 55 डिवाइडेड बाय क्या है? x plus y. x plus y is 70 plus 55, 125. अब ये करो सॉल्व, you will get the answer. Got it? तो ऐसे टाइप आइडेंटिफाई करो. इसमें देखो 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y. अब थर्ड टाइप का भी होगा, क्वेश्चन ले लेते हैं. ये तो हो गया. अब देखो थर्ड टाइप का है ये. अ मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस. सर्टेन डिस्टेंस सेम है अभी. एवरेज स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर. इज लेट बाय 10 मिनट्स. तो however with a speed of 40 kilometer per hour, he reaches his office 5 minutes earlier. Find the distance between house and office. ओके, ये थर्ड टाइप का हो गया. एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, T1 माइनस T2. क्लियर? तो ऐसे टाइप अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो इट विल बी वेरी इजी, और उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. क्लियर? नाउ लेट अस गो टू परसेंटेज. परसेंटेज में देखो कितने कैटेगरी या कितने टाइप के प्रॉब्लम आते हैं. परसेंटेज में क्या पूछते हैं? अब प्रोडक्ट की प्राइस है 30 रुपीज, उसमें 5% डिस्काउंट है, दिया है. तो न्यू वैल्यू, ओरिजिनल प्राइस पता है, डिस्काउंट पता है, या कितना कमीशन है ना. घर है 30 लाख का, उसमें 10% कमीशन है, इंक्रीज और डिक्रीज ये दिया होता है. एंड यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड द न्यू वैल्यू. ओके. या सेकंड कैटेगरी क्या है? ओरिजिनल वैल्यू नहीं दी होगी. एक प्रोडक्ट ABC पर्सन ने, गणेश सर ने एक मोबाइल 13,000 को परचेज किया, उसके ऊपर उनको 15% डिस्काउंट मिला. तो मोबाइल की ओरिजिनल प्राइस क्या थी? तो ओरिजिनल इज अननोन, न्यू वैल्यू इज गिवन, परसेंट इज गिवन. ये टाइप के प्रॉब्लम होंगे. या एक प्रोडक्ट की इतनी इतनी प्राइस है, उसको इतने इतने अमाउंट पे बेचा जा रहा है, तो कितना डिस्काउंट दिया गया या कमीशन ब्रोकरेज दिया गया. ऐसे क्वेश्चंस होंगे. क्लियर? और उसका अगर आपको ये चाहिए, ये देखो ऐसे न्यू वैल्यू फाइंड करना है तो ये फार्मूला है. ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करना है तो ये फार्मूला है. एंड
इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट ये फाइंड करना है, तो डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100 ये फार्मूला है। ऐसे फार्मूले याद करो टाइप के हिसाब से, so it becomes very easy to solve. Clear? So I think a time up to 12 was given to me, and being a mathematics, practice is the key. Practice karo. I will send this PPT to sir. Okay, he will give it to you. So I have just taken 2-3 samples. You will have to do it for all those things, work and time, fraction, टाइम एंड डिस्टेंस का अभी मैंने दिखाया आपको, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मैंने परसेंटेज का एक दिखाया आपको, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर? तो ये सारे सिलेबस के लिए आपको ऐसे टेबल बना के पढ़ाई करेंगे तो इट बिकम्स वेरी इजी। हेलो। Yes, sir. Yes. Yes. Anyone wants to ask question to sir? So हाँ, yeah, you may ask me questions if you have any questions. कोणाला विचारायचं आहे का क्वेश्चन? थोडक्यात रेशो बद्दल सांगा ना, इफ पॉसिबल. हाँ, रेशिओ म्हणजे दोन संख्यांचा भागाकार असतो मॅडम, सिंपल. ओके, म्हणजे माझी स्क्रीन दिसते तुम्हाला, x इज टू y जेव्हा आपण म्हणतो तर ह्याचा सिंपल अर्थ आहे x डिवायडेड बाय y है ना, आणि तो एका प्रोपोर्शन मध्ये वाढला तरी चालतो, म्हणजे 1/2 जर म्हटलं आपण 1 डिवायडेड बाय 2, हा 1 चा 2 चा भागाकार आहे, हा इक्वल असतो 2 डिवायडेड बाय 4, हा इक्वल आहे कुणाला 4 डिवायडेड बाय 8 है ना. एक संख्या दुसऱ्या संख्येच्या proportion मध्ये You are not audible, sir. व्हॉइस ब्रेक होतोय सर, व्हॉइस. पोर्शन मध्ये सर आवाजच येत नाहीये, तुम्ही मध्ये फ्रॅक्शन मध्ये मध्ये थांबताय, पॉज होतोय तुमचं. प्रोपोर्शन मध्ये किंवा फ्रॅक्शन मध्ये हॅलो. हा सर, आता येतोय आवाज. आवाज ब्रेक होत होता. आता येतोय ना? स्क्रीन नाही दिसत पण सर. इश्यू आहे थोडा. तर मी आता येतोय आवाज? मी व्हिडिओ हो बंद करतो. हो हो. रेशो बद्दल विचारलं ना हो. मॅडमनी. रेशो म्हणजे सिंपल टर्म्स मध्ये तो भागाकार आहे. ओके, समजा माझा पगार 20,000 आहे आणि माझ्या भावाचा पगार 40,000 आहे, तर आमच्या दोघांच्या पगारचा रेशो काय आहे? तर 20,000 भागिले 40,000, म्हणजे त्याचं उत्तर येतं 1/2. म्हणजे माझा पगार जर 1 असेल तर भावाचा पगार किती झाला? 2, डबल झाला तो. बरोबर आहे, याला आपण रेशो म्हणतो. 1:2. 1:2 म्हणजे माझा 1 असेल तर भावाचा 2 झाला.
ठीक आहे. याचा अर्थ काय होईल, माझा समजा 10 असेल तर भावाचा किती होईल, 20. क्लिअर? होय सर. हा, यालाच रेशो म्हणतात. सर ह्याच्यामध्ये व्हेरिएशन्स काय येऊ शकतात? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन्स. रेशोचे ना, रेशो मध्ये जास्त व्हेरिएशन नाहीये. ओके, सिम्पली एक रेशो दिला जाईल, त्याच्यातले एक नंबर दिली जाईल, दुसरी नंबर विचारली जाईल. ओके, 2 quantities are in the ratio 1:3. एखाद्या प्रोडक्ट मध्ये 2 क्वांटिटी 1:3 मध्ये जर ए आणि बी, ए जर 200 असेल तर बी किती असेल, मग हा प्रश्न विचारला जातो. येतोय आवाज माझा? हा सर, हो येतोय. हा, है ना. एखाद्या प्रोडक्ट मध्ये विटॅमिन ए आणि बी 1:3 च्या रेशो मध्ये, बरोबर आहे. त्यात विटॅमिन ए जर 200 असेल तर बी किती असेल, ह्या टाईपचा प्रकार. म्हणजे बी किती होईल तुमचं, 600. 600. क्लिअर? हा. किंवा एका प्रोडक्ट मध्ये ए आणि बी विटॅमिन 1:3 रेशो मध्ये, दोन्ही मिळून 800 आहे. त्यातला ए जर 200 असेल तर बी किती असेल, असा प्रश्न विचारला जाईल. क्लिअर? तर 1:3 आहे. Sir, 1:3 मध्ये 1 + 3, हा 4 करा. 4 ची व्हॅल्यू किती आली तुमची, 400. तर एकाची व्हॅल्यू आली 200. त्या प्रोपोर्शन मध्ये येईल ते, असे प्रश्न विचारले जाते. मग ते मिल्क असेल, मिल्क मध्ये पाणी मिसळलं, पाण्यामध्ये दूध मिसळलं, ते तसे प्रश्न येतात कधी कधी, दुधात पाणी वगैरे. एनिथिंग एल्स? सर कोणतं बुक फॉलो करायचं सर फॉर लॉजिकल रिझनिंग, मार्केटमध्ये जे चांगलं आहे किंवा? न्यूमरिकलला मी ते सांगितलं होतं, क्विकर मॅथ्स म्हणून एक बुक आहे, ते आपल्या घरी असा. सर नाव परत एकदा सांगा, आणि तुम्ही ऑडिबल नाहीये. असं बुक आहे, माझ्या घरी आहे ते. टायपिंग हिअर. सर व्हॉइस ब्रेक होत होता, परत सांगा पुस्तकाचं नाव. सर चॅट बॉक्स मध्ये लिहिलं नाव तरी चालेल सर. ओके सर, कदाचित रेंजमुळे प्रॉब्लेम आला असेल सरांना. सरांनी क्विकर मॅथ्स टायराचं बुक सांगितलंय, अमेझॉन वर मिळते म्हणून. हो हो, क्विकर मॅथ्स. हा. येस सर. सॉरी, परत एकदा सांगा ना. काय? क्विकर मॅथ्स टायरा. सायरा? टायरा टायरा. गुगल वर सर्च करा मॅडम, क्विकर मॅथ्स असं टाकलं ना लगेच येते गुगल वर सर्च केल्यानंतर. अमेझॉन वर आहे, त्याची प्राइस आहे 380. ओके, आभारी आहे. हो, जॉईन झालो सर. हॅलो. येस सर, येस. ते बुक्सचे नाव सांगून द्या. यस. हा, क्विकर मॅथ्स बुक आहे, एम टायरा ऑथर आहे. अमेझॉन वर अवेलेबल आहे. 300-400 आसपास त्याची प्राइस असेल. पण खूप छान बुक आहे ते, कुठल्याही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला
खूप आणि सिम्पल ट्रिक्स दिलेले आहे त्याच्यामध्ये. टाइप्स पण दिलेले आहे, कुठल्या कुठल्या टाइप्सचे टाइप वाईज दिलेले, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 असं. सो यू कॅन रेफर दॅट बुक. लायब्ररीत ठेवावं, घरी ठेवावं असं बुक आहे. Yes, sir. Sanjana, are you here? Yes, sir. Yes, yes. Please start. Okay, sir. On behalf of AICESR, I would like to express my gratitude to our Honorable Chairman Ashokji Kataria for the motivation. I would also like to thank our Honorable Administrator Dr. Narendra Telrande sir for their constant support. I would like to thank today's expert Dr. Parmeshwar Bidadar sir for such an informative session. And sir's session is not only useful for NetSet but for every competitive exam, because this topic is included in every exam. I will also thank our in-charge principal, Sarita Verma ma'am, for always guiding us. I will give special thanks to the convener of the workshop, Mr. Ganesh Wag sir, for arranging such a beautiful session. Thanks to the IQAC coordinator, Dr. Preeti Sonar ma'am, and all teaching staff and support staff for their valuable inputs. Last but not the least, I wanted to thank all the participants for sharing their active participation in this session. Thank you. Yes, thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, thank you. Thank you, sir. Hello. Yes, sir. Yes. Yeah, thank you very much. Yes. Thank Hello, you. sir. Sir, I have shared PPT with you. Yes, sir. Yes. So Uh, you can share with the student. sir. आणि 12 पर्यंत होता ना वेळ? हा नाही काय नाही सर, थोडंफार हा, ठीक. कारण आता प्रत्येक सेशन थोडस टॉपिक स्कोप जास्त असल्यामुळे वाढतो. गणेश सर क्लासेस घेता? ओके ओके. नाही 11 ते 12 पाहिलं होतं. येस मॅडम. येस.